Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture, we discussed about dark reaction, and today our lecture is about respiration. What is respiration and what is the importance of respiration? और लास्ट में हम ईटा बेस के जो एमसीक्यूज होते हैं respiration में इस पर भी हमारा डिस्कशन होगा. Respiration is basically is a oxidation reduction process which occur inside the living organism during which organic food is break down and energy is released. Respiration हमारे पास एक oxidation reduction process है जो living cell और living organism के अंदर होगा और इसमें हमारे पास organic जो food molecules होता है इसका breakdown होता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा energy release होता है. Respiration is basically a energy releasing process. ये हमारे पास एक energy releasing process है. इसमें oxidation भी होगा, इसमें reduction भी होगा. It is opposite of photosynthesis. जिस तरह हमारे पास photosynthesis था कि इसमें एक organic food molecules का formation होता है, energy store होता है, तो इसलिए respiration के अंदर हमारे पास energy store नहीं होता है. इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? Energy is released in the respiration, while in the photosynthesis the energy is stored. respiration के हमारे पास two types है. एक है aerobic respiration और दूसरा हमारे पास है anaerobic respiration. respiration का जो रिएक्शन है वो लिखते हैं कि C6H12O6 ये हमारे पास एक organic food molecule है, ग्लूकोज है. ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? इसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ वाटर और इसके साथ एनर्जी रिलीज होता है. 36 और 38 एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है? ये हमारे पास रिलीज होता है और इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं वाटर रिस्पायरेशन. इन सिंपल वर्ड्स, it is a process in which the energy is released. हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हमारे पास क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है. इसके टू टाइप्स है. एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हमारे पास है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? Aerobic respiration is basically the respiration in which the oxygen is used. यानी वो respiration जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन का यूज कंपलसरी है, ऑक्सीजन का यूज लाजमी है, इसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. एक हमारे पास है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है. विदाउट ऑक्सीजन एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर. Aerobic respiration is complete in three steps. First is glycolysis, second is Krebs cycle, and the third one is electron transport chain. Glycolysis is basically हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होगा और Krebs cycle और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा. Glycolysis साइटोप्लाज्म के अंदर होगा and it is common in both aerobic and anaerobic respiration. वो ईटा इंडिकेट में वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछता है कि the glycolysis, which one step is common in aerobic and anaerobic respiration? Your answer is glycolysis. यानी glycolysis हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी पॉसिबल है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है. यानी इस साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. अगर ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन नहीं है तो फिर भी ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास होता है. तो हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन इन बोथ एरोबिक and anaerobic respiration. Aerobic respiration complete in three steps, while anaerobic respiration is basically completes alcoholic fermentation or lactic acid fermentation. इसको हम डिस्कस करते हैं. What is the first step? And that is what? That is glycolysis. Glycolysis is basically the stepwise breakdown of glucose molecule into 2-pyroic acid is called what? Glycolysis. What is glycolysis? Glycolysis. Stepwise breakdown of glucose molecule into what? Glucose molecule into what? Into 2-pyroic acid. 2-pyroic acid. Pyroic acid. और एक pyroic acid हमारे पास क्या होता है? 3 कार्बन होता है. Glycolysis is a stepwise breakdown of glucose molecule into 2-pyroic acids.
इसमें हमारे पास बेसिकली 2 स्टेप्स होता है। एक होता है प्रीपरेटरी फेज और दूसरा हमारे पास होता है प्रीपरेटरी फेज और दूसरा हमारे पास क्या है ऑक्सीडेटिव फेज। दूसरा हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फेज। When a glycolysis is complete in 2 steps, first is preparatory and the second one is what? The second one is oxidative phase. What is glycolysis? The stepwise breakdown of glucose molecule into 2-pyruvic acid. This process and this phenomena is called what? Glycolysis. First हम preparatory phase को डिस्कस करेंगे और second हम डिस्कस करेंगे oxidative phase को। इसको हम बेसिकली डायग्राम से वाज़ेह करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ग्लाइकोलाइसिस में फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रीपरेटरी फेज और सेकंड स्टेप हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फेज। फर्स्ट ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू व्हाट? C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट तक। ग्लूकोज 6 फास्फेट यानी इसमें हमारे पास एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होता है। एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा और हमारे पास ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। फिर हमारे पास ये ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेराइज होगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट तक। फ्रक्टोज व्हाट? 6 फास्फेट। फिर हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट तक किया होगा। फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट तक ये इसमें हमारे पास एक अदर एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है? यूज होता है और ये एडीपी बनता है। 1 ATP molecule used and fructose 1,6 phosphate is formed. This whole process fructose 1,6 phosphate फिर हमारे पास 2 molecules तक split होगा। एक को हम कहते हैं DHAP और सेकंड को हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट और सेकंड हमारे पास है PGA फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। ये दोनों हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट से क्या होता है? बनता है। एंड दिस whole process, this whole step is called what? This whole step is called preparatory phase. ये हमारे पास preparatory phase है यानी ग्लूकोज का प्रिपरेशन होता है। प्रिपरेटरी फेज यानी इसमें हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज प्रिपेयर्ड होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ DHAP एंड फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। फर्स्ट हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक एटीपी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट तक इसका आइसोमेराइज होगा। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म इज बेसिकली केमिस्ट्री में एक प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। इन दिस प्रोसेस many molecules have same empirical formula but different structure formula। यानी इस तरह हमारे पास बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट फिर हमारे पास एक एटीपी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनता है। फिर ये फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट स्प्लिट होगा DHAP और PGA और इसको हम कहते हैं व्हाट? इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज। इसमें हमारे पास ये दोनों एक दूसरे तक क्या होता है? कन्वर्ट होता है। तो EDHAP PGA तक कन्वर्ट होता है और क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होता है। ऑक्सीडेटिव फेज ऑक्सीडेटिव व्हाट? ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है? 2 PGA से हमारे पास क्या होता है? एक प्रोडक्ट बनता है, इसको हम कहते हैं 1,3 फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड। 1,3 फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड और इसमें हमारे पास NADH2 बनता है। NADH2 NAD is reduced to what? NADH2 in this process। फिर हमारे पास क्या होता है?
इसमें हमारे पास फिर होता है 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो ये हमारे पास इस दौरान भी 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड ये बनता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, एटीपी मॉलिक्यूल फिर हमारे पास ये 2 फॉस्फोइनोल पायरोएट तक कन्वर्ट होता है और फिर लास्ट में हमारे पास फिर एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होता है, रिलीज ऑफ व्हाट एटीपी मॉलिक्यूल्स, और हमारे पास 2 पायरोइक एसिड बनता है। This process is called what? This whole process is called glycolysis. What is glycolysis? 2 PGA हमारे पास काउंट होता है 13 PGA तक, 13 PGA फिर काउंट होगा 3 PGA, 3 PGA काउंट होगा 2 फॉस्फोइनोल पायरोइक और लास्ट में हमारे पास 2 पायरोइक एसिड बनता है। इसमें हमारे पास 2 NADH2 बनता है और 4 ATP मॉलिक्यूल, 2 इस स्टेप पर और 2 इस स्टेप पर, यानी प्रीपरेटरी फेज में हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल क्या होता है, इसका यूज होता है, used, while in the oxidative phase 4 ATP molecule is produced और हमारे पास इसके साथ 2 NADH2 मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होता है। and this whole process is called what? glycolysis. ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास 2 ATP मॉलिक्यूल यूज होता है और नेट गेन हमारे पास क्या होता है, नेट गेन ATP मॉलिक्यूल्स 2 होता है। अगर वो आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछे कि इन द प्रीपरेटरी फेज हाउ मेनी ATP molecules are produced, your answer is 0. There is no formation of ATP molecule in the preparatory phase. Only in the oxidative phase ATP molecules are produced. Preparatory phase में सिर्फ 2 ATP molecule यूज होता है, that is also MCQs. In the oxidative phase 4 ATP molecules फॉर्मेशन होता है, लेकिन 2 हमारे पास ऑलरेडी यूज हुआ है, तो 4 - 2 तो नेट गेन हमारे पास क्या होता है, नेट गेन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, नेट गेन ऑफ व्हाट एटीपी मॉलिक्यूल, नेट गेन होता है 2 ATP और इसके साथ 2 NADH2, that is the product of what, the product of glycolysis is only 2 ATP and 2 NADH2, 2 NADH2 and 2 ATP molecule। हमारे पास इसमें MCQs है कि the net gain of ATP molecule in the glycolysis is, your answer is 2 ATP and 2 what, 2 NADH2, and 2 ATP or 2 NADH2 is the product of what, is the product of glycolysis, and this whole reaction and this whole process is called what, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होगा, एक को कहते हैं प्रीपरेटरी फेज और सेकंड को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। प्रीपरेटरी फेज में हमारे पास एटीपी मॉलिक्यूल इसका फॉर्मेशन नहीं होता है और ऑक्सीडेटिव फेज में एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपने इसमें जो अहम एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो भी याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर वो इससे किस तरह का एमसीक्यूज बनाता है। If you have any question or any problem regard this lecture, you can ask in the comment section. Next lecture में हम फिर क्रेब्स साइकिल को डिस्कस करेंगे और इसके साथ लिंक्ड रिएक्शन को, यानी कन्वर्जन ऑफ पायरोइक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, इस टॉपिक को और इसके साथ क्रेब्स साइकिल को फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।